खेल की शुरुआत करनी है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए ये प्रिंस मूवीज के टेक्नीशियन को दिखाया जा रहा था। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदित्य ठाकरे कप 2017 में युवा अधिकारी फोकसमैन हीना पाटिल और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब महिंद्रा से या संघाचा संगणक थोडासा आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे। ये देखिए हमारा कैमरामैन को दिखाया जा रहा है। प्रिंस मूवीज के कैमरामैन धीरज नीरज उर्फ बिलाल दोस्ती फाइटर महिंद्रा स्पोर्ट या संघाचा संगणक आपण थोडासा आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे। संगणक बिना विलंब आपण थोडासा आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे। दोस्ती फाइटर और इसकी बॉयज उमाकांत पाटिल, रमाकांत खरत, हरेश माली, अल्पेश पाटिल, राजेश पाटिल, भारत मात्रे, राजेश पाटिल और मंगेश पाटिल, इन्होंने भी इस स्पर्धा के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। दीना पाटिल के आयोजन और नियोजन के लिए इस वक्त मुकेश पाटिल उर्फ एमपी सेठ, विकास पाटिल युवा सेना उपाध्यक्ष अधिकारी दापोडे, सुमित पाटिल, प्रशांत पाटिल, किशोर किश पाटिल, आतिश पाटिल, शशि पाटिल, सतीश सालुंके और शशिकांत पाटिल, हर्ष पाटिल, वन मैन शो ग्रुप पेवंडी ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। उमेश तरे, मुन्ना तरे और जानता राजा ग्रुप ने इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। प्रीतम तरे और मयूर तरे ने भी ऑल द बेस्ट कहा है महिंद्रा स्पोर्ट्स को। बैक टू क्रिकेट नाउ, टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड, बिलाल शेख एंड आकाश पाटिल, द मैन फ्रॉम अंजूर। View of the commentary box. Prathamesh with us in commentary box. All the best for Mayur Tare from Munna Tare. Is going to be two openers on the ground. Bilal Sheikh and Akash Patil. First ball, Lakhan, right arm over the wicket. Goes to Bilal Sheikh, full toss, swung away, mega six, maximum from Bilal. That was a loosener from Lakhan Patil, and Bilal taken his chances and swung as ball over mid wicket for a mega six. So Bilal Sheikh off the mark with six and Mahindra 6 for no wicket. अतिशय खराब चेंडू मी म्हणेन. पाहू शकता आपण अतिशय खराब चेंडू होता. डाव्या स्टेअरला फुलटा चेंडू जो होता अतिशय खराब चेंडू म्हणता येईल आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. Now Bilal Sheikh open his account with his style, and that's the view of the place pavilion. Omkar Yuva Sanstha Place Pavilion. Bilal off the mark with 6 and Mahindra 6 for no wicket. Mayures Sport qualify for the quarter final, and winner of this game meet in last match against Mayures Sports.
So play begin now. Bilal Sheikh off the mark with sixer. And all the best for Harish Patil and Sachin Gaikwad and Mahindra Sport from Ajay Patil, Pimple Nair. All is well. Start from Bilal Sheikh is a dangerous customer. King of Bhiwandi cricket. 6 for no wicket. Here goes Lakhan Patil. Would turn from Dapode end. Facing him Bilal Sheikh. Goes to Bilal, this time drive, good looking stroke all on the ground to long on. Ananta is there but with the stroke batsman through for 1, 7 for no wicket. केतन पाटील आणि या दोन्ही टीमला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. सहारा इंडियन व महिंद्रा स्पोर्ट्स. And here we watch Lakhan Patil. Facing him Akash Patil. Goes to Akash, hits in the air but just over the extra cover for 4. दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी Uppish stroke indeed, but just clear the extra cover, just overhead of the fielder, 4 runs. You can see there little bit inside out stroke, but just overhead of the extra cover. So runs coming very rapidly, 11 for no wicket. Ramesh Tare, all the best for Sahara Indians, this time tucked away on the onside, in front of his legs, misfield, and ball is racing for 4. Sloppy work from the deep fielder, and ball is racing all the way to the boundary for 4. And I think Mayur is there. Wasn't a short delivery, goes his back foot and comes to him, then puts it nicely, middle of the bat, plenty of power behind his stroke, tremendous timing, mighty blow from Akash Patil. All the best from Sajan Gaikwad, Ajay Gaikwad and Vivek Gaikwad to Sachin Gaikwad and Harish. This time there is a clear pressure on bowler Lakhan Patil. He bowls away from the off stump, bowls in Dusra Mohalla, white signal from umpire, 22 without loss. This is the attacking start from Mahindra Sport. Runs coming very easily, and what a shot played by Akash Patil. Nice bottom hand use. One of the young player, man from Anjur. This time tried to pull it, but dropped by wicketkeeper, not a very easy chance. 1-2 score now, and that marks the end of the first over. Very good start from MLA Rupesh Matra FM team. Mahindra Sport 23 without loss. तेवीस रन
एक ओवर की समाप्ति बिना किसी विकेट के। मयूर तरेसाठी या ठिकाणी तसे सारा इंडियन्ससाठी हार्दिक शुभेच्छा आहेत. रमेश तरे, खारबावचा निशू शेठ, कल्पित भाई, टीवी सोनिया, मॉनिटर पे यांना आपण सोनिया बघितलं? को, यस, सोनिया को दिखाया जा रहा था। आणि सोन्या पाटील. आणि जेव्हा एमएलए ट्रॉफी सुरुवात होणार आहे तेव्हा सोन्या पाटील एक खूप बिझी असणार आहेत. त्यांना आपण बघितलं. बिजी तो इस साल टीमें भी रही है, कमेंटेटर भी रहे हैं, अंपायर भी रहे। इसके बाद एक मुकाबला और है और गाने को पलट के कहना होगा कि चांदाना चांदाना गेली रात। इस मर्तबा अगेन अच्छा ड्राइव, अच्छी फील्डिंग लखन पाटिल की, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सऊदी अरबिया रियाद से इस वक्त ताबिश खान ने महिंद्रा स्पोर्ट और बिलाल शेख को ऑल दी बेस्ट कहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं अनंता। बिलाल शेख को बहुत ही करारा ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग मिड ऑफ पे लखन की, फिर से एक रन बनता हुआ स्कोर आगे सरकता हुआ 25 पे पहुंचा है, 25। आज गैसुद्दीन शेख बीमार होने की वजह से नहीं खेल रहे हैं। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है गैप में, कोई मौका नहीं, बहुत ही तेज स्ट्रोक, 4 रन। गेली रात। ये देखिए बहुत तेज स्ट्रोक पैरों के सामने आकाश पाटिल का। मयूर तरे को ऑल द बेस्ट का है जनता राजा खरबाव ने। स्मर्तबा शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए, पंच किया इनफील्ड के ऊपर से, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अब जाकर उसे रोकने में सफल हुए लेकिन नहीं रोक पाए बैट्समैन को 2 रन बनाने से। इन 2 रनों से आक्रमण इस वक्त शुरू हो चुका है, तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर है आगे बढ़ता हुआ 31 रन। डीजे राणा निंबोली ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। रमेश तरे, शिवसेना विभाग प्रमुख खारबाव, निशांत जाधव, सत्यवान तरे, कल्पित पाटिल, युवा नेता वर्ल्ड। इस मर्तबा अच्छी गेंद आगे रखा था, बीट किया वहां पर यांनी या ठिकाणी आकाश माझ्यासाठी को- आणि माझे सहकारी समालोचक सिद्दीक भाबे यांच्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. धन्यवाद. आपला खूप खूप आम्ही आभारी आहोत. गेंदबाजी कर रहे हैं अनंता। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, पहले बाउंस पर गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। बिलाल शेख 8 पर है और आकाश इस वक्त 26 पे बल्लेबाजी कर रहे। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी। 2 ओवर की समाप्ति, रनों की लूटमार मचा रखी महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। 35 रन हुए और कोई भी विकेट नहीं गिरा है। आने वाले बल्लेबाजों में हवा और दवा वाले बैट्समैन सचिन गायकवाड का आना बाकी है। पपिया खाड़िक अच्छे फॉर्म में चले और पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं गवली सर, उसमें आपने देखा है कि पपिया खाड़िक ने आखिर की 4 से 5 गेंदों पर 15 से 20 रन बनाए और महिंद्रा को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा है।
प्रीतम जानता राजा खारबाव और प्रीतम ने मयूर तरे को ऑल द बेस्ट कहा है. नक्कीच मयूर तरेसाठी हार्दिक शुभेच्छा. भावेश कोळी, भावेश सत्यम तरे, कोहली, उमेश तरे, प्रीतम तरे, पण सध्या तरी ऑल इज वेल म्हणता येणार नाहीये. ये हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा था. 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर है इस वक्त 35 रन. प्रिंस मूवीज देर रात सेवा करती हुई. गेंदबाजी के लिए इस वक्त जयेश को बुलाया गया है. मरता क्या ना करता, कमेंट्री में परिवर्तन तो नहीं लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन. पहली गेंद शॉट बैकफुट पे गए, पुल किया कोई. ओ हो बिलाल शेख इस साल बहुत ही दुर्भाग्य रहे. ये कैच ही नहीं था, गैप में गेंद खेली थी और चौथी से 5वीं मर्तबा बिलाल शेख इस तरह से आउट हुए इस सीजन में, जिस तरह उनका कैच पकड़ा है भागते हुए. क्रिकेट में गवली सर लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज रहती. 2 चीजें पूरी सीजन में मैंने देखी है. एक तो मैगी 11 के साथ लक नहीं रहा है और एक बिलाल शेख के साथ. नए बैट्समैन सचिन गायकवाड़ आए हैं. देखना ये जो सचिन गायकवाड़ है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा, जबकि हवा चल नहीं रही है, लेकिन गेंदबाजी की दवा क्या करती है ये देखेंगे हम. आकाश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. गेंदबाजी कर रहे जयेश. 2 चीजें इस सीजन में लक फैक्टर की हम बात करें तो मैगी 11 और बिलाल शेख दोनों के साथ किस्मत का साथ नहीं रहा है. इस मर्तबा अपील और आउट एलबीडब्ल्यू. चल अपना बजा. रिप्ले मध्ये आपण पाहूया कशा प्रकारे जयेश याचा हा चेंडू होता. यस, प्लम एलबी अगदी मल्ले स्टेवर पकडलेला आहे. बऱ्याचशा वेळेला असं होतं की पहिला फलंदाज बाद होता आणि त्याच्या पाठोपाठ दुसराही सहकारी पैलूमध्ये परत जातो. बिल्कुल. पहला तो फील्डर का विकेट था लेकिन दूसरा परफेक्ट यॉर्कर. अभी तक आदित्य ठाकरे कप की हम अच्छी गेंद की बात करें तो फिर पायनियर के उसामा ने जो बोल्ड किया था वो अभी तक की सबसे अच्छी गेंद है. 35 रन बिना किसी विकेट के, 2 विकेटों के नुकसान पर. ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर, पिछले पांव पे खेले थे, विकेटों के सामने पाए गए. इस तरह के इस पर आप डीआरएस भी नहीं ले सकते. रिव्यू, ये कैच को देखिए, क्या कैच पकड़ा था वहां पर. मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पूरे सीजन में 2 चीजें हमने देखी है सिटी क्रिकेट में. मैगी 11 को भी किस्मत का सहारा नहीं मिला है और बिलाल शेख भी किस्मत के सहारे से दूर रहे. क्रिकेट में लक फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज है. सुशील दोषी कहते थे कि तदबीर और तकदीर का मिला जुला असर चाहिए. जयेश 2 विकेट लेकर विकेटों की खुराक पा चुके हैं, हैट्रिक पर हैं. इस मर्तबा पारदी ने आते ही भेज दिया है 6 रन.
इनको फर्क नहीं पड़ता है सुरेश पारदी को के हैट्रिक पर है गेंदबाज। अंदर आती हुई गेंद थी, विद टाइट स्वंग कर दिया ऑन साइड में 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 पे पहुंचा है। अभी भी टीम के कप्तान पपिया खारिक का आना बाकी है। आज बिलाल शेख और सुजीत नाइक दो बड़े खिलाड़ी, गैसुद्दीन शेख और सुजीत नाइक नहीं खेल रहे हैं। देखना है कि सचिन गायकवाड़ से भी काफी अपेक्षाएं हैं। धीरे धीरे अब हवाएं चलती भी। जयेश सामना करेंगे बैट्समैन सुरेश पारदी। एक अच्छा टोटल हम कहेंगे 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा फिर से पुल करने की कोशिश, ऊपरी सिरा लगा, गेंद आउटफील्ड में गई, वाइड ऑफ डीप मिड ऑन, गेंद को उठाया, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। स्कोर 42 पे पहुंचा है। तीसरा ओवर चल रहा है। गौली सर, अगर अभी तो बहुत मुकाबला बाकी और 72 का लक्ष्य छुआ था नवाब के सामने, अगर सपोज फर्स्ट कीजिए इस मैच को महेंद्रा जीतती है तो क्या अगला मैच ग्राउंड में होगा या फिर उसका फैसला संजय मात्रे करेंगे? क्योंकि मयूरेश बनाम फिर वो होगा। नाही नाही, हा सामना मैदानात होईल, कारण क्रिकेट आहे आणि संपूर्णपणे अच्छी मजा आएंगी। संघर्ष बघायला मिळेल, कारण दोन्ही बलाढ्य संघ आहेत. पण जर तर हे डिपेंड असणार आहे. अजय गायकवाड़ ने इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स सचिन और आरिश को ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत अच्छी गेंद, ऊपर खेल बैठे, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत खूबसूरत गेंद। देखना है कि सचिन गायकवाड़ क्या करते हैं। इस बीच अगेन बल्ले का सिरा लेती हुई पहुंची है, स्टीयर किया था गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, स्क्वाड स्टर्मैन पे गेंद को उठाया, 2 रन। इस वक्त ओवर समाप्त होते हुए 3 स्कोर है, 44 रन। देखना है कि अगली दौड़ में क्या सचिन गायकवाड़ और सुरेश पारदी गेंदबाजों पे टूट पड़ते हैं या वापसी करती है सारा इंडियंस, ये बताने के लिए माइक्रोफोन पे आइए डॉक्टर गौली सर। धन्यवाद सिद्दीक भाभी. मित्रांनो, आपण पाहू शकता आमचा कमेंट्री बॉक्स. कमेंट्री बॉक्स मध्ये डाव्या बाजूला ऑफिशियल स्कोरर राजू पाटील, आणि त्याचबरोबर राजू पाटील यांच्या डाव्या बाजूला व्हाईस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंदाबाज सिद्दीक भाभी यांना आपण पाहू शकता कमेंट्री बॉक्स मध्ये. हे आपण पाहू शकता उमाकांतजी पाटील, हरेशजी माळी मान्यवर कक्षामध्ये या स्पर्धेसाठी यांनी सुद्धा एक अपार मेहनत घेतलेली आहे. स्पर्धा ही चांगल्या रीतीने अंतिम टप्प्याकडे मार्गक्रमण करते, त्याचं नक्कीच श्रेय यांना द्यावं लागेल. उमाकांतजी पाटील, हरेशजी माळी. यावेळेला मात्र अपील केलं जात आहे, मात्र चेंडू थोडासा उजव्याच्या बाहेर न जातो हे बघितलेले पंचांनी अपील फेटाळून लावतायत आणि लेग बायचा इशारा करतायत पंच दिनेश नाईक. धाव संख्या झालेली 45, 45.
उपाध्यक्ष बीजेपी ग्रामीण आमचे सन्माननीय रामजी भोईर वळगावचे आहेत. त्यांनी या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. राम भोईर साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. देखना है अब बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश पुणे इथं गोलंदाजी मार्कवर. याला मात्र पोल आणि पॉवरफुल डीप स्कोअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. कहा था ना मैंने कि जो सचिन गायकवाड़ है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा. क्या गजब का शॉट खेला है वहां पे उन्होंने. छोटी गेंद थी, ये देखिए किस तरह से अपने आप को पीछे किया था, गेंद को आने दिया था. बहुत ही बढ़िया हुक शॉट. 6 रन. महिंद्रा स्पोर्ट्स को इस वक्त लगान स्पोर्ट्स के करता धरता केवल पठारे, आतिश पठारे, विशाल पठारे, समीर पठारे और अमर पठारे ने ऑल द बेस्ट कहा है. ऑल इज वेल चलता हुआ एकावन्न धावा झाल्यात. मैरेश महिंद्रा स्पोर्ट्सचे समर्थक एकावन्न धावा झाल्यात. चौथ्या षटकाला सुरुवात झालेली आहे. 2 बाद 51 एक चांगल्या स्थितीमध्ये महिंद्रा स्पोर्ट्स संघ. महेश याला मात्र स्टिअर केलेला आहे. चेंडू स्क्वेअर थर्ड मॅच सीमारेषे करतोय. क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. अगदी बरोबर. थोड्याच वेळानंतर समजेल कुणाच्या डोक्यात टिकटिक वाजेल आणि धडधड कोणाच्या ठोक्यात वाढेल. याचं उत्तर बरोबर 35 मिनिटांनंतर मिळेल. महेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी मात्र अपील केलं जातोय पायचीचा. चेंडू मात्र थर्ड मॅनला जातोय. 55 इशारा. एक धाव मिळते. सचिन गायकवाड़ वैसे भी खाते पीते घराने के लगते हैं. अगर ये एक अपनी टांग बीच में रख दे तो तीनों स्टंप कवर हो जाएंगे. यही कारण था कि देखिए इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था. अंपायर ने नकारा अपील को. 56 धावा झालेल्या आहेत. फक्त 2 फलंदाज बाद झाले आहेत.
सलामीची उडी तंबूत परतलेले बिलाल आणि आकाश. आकाशाने मात्र आज अतिशय चांगली फलंदाजी केली होती. पार्टनरशिप बघायला मिळाली होती सलामीला. त्यावर मग खरं ऑन साईडला खेळायचं होतं. शेणू मात्र पॉईंटला होतो, शॉर्ट पॉईंटला, आणि त्यावर फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते सुरेश पारदियास. धाव संख्या होती 57. याप्रमाणे धावसंख्या जर झाली तर 70चा आकडा सहजगत्या पार होईल. कारण चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. आपण जो सामना पाहतोय, बबन पाटील फॅम टीम सहारा इंडियन आणि सन्माननीय आमदार रुपेश दादा मात्रे फॅम टीम महिंद्रा स्पोर्ट्स, दोन संघामध्ये महेश. यावेळेला पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलेला एकच धाव मिळणार आहे, कारण डीप मधून पूर्वानुमानानुसार क्षेत्ररक्षक येतोय आणि तोपर्यंत फक्त स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी मिळते. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या झाली 58. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. धावसंख्या 58. अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि ह्या एका षटकामध्ये जर 12 किंवा 13 धावा जमवल्या तर 70+. आमचे कॅमेरामॅन नीरज, ऋषी कॅमेरामॅन मार्टी ऋषी आहेत. आणि आपण पाहू शकता डिस्कवरीचं दृश्य. टेलिव्हिजन चॅनल आपण डिस्कवरी पाहतो त्या प्रमाणचं दृश्य आहे मित्रांनो हे. यस, ये साउथ अफ्रीका के जंगल नहीं है, बल्कि इस ग्राउंड के ऊपर की पोजीशन है जहां पे दर्शक एंजॉय कर रहे हैं. ये देखिए नीरज उर्फ बिलाल. सामना सुरू करायचा आहे. पंचाने वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचंय. जयेश याला मात्र अपील केलं जातंय जोरदार. मात्र उत्साह जास्त दिसतोय, विश्वास मात्र कमी अपील मध्ये. चेंडू मात्र निधाव, एक चांगला चेंडू. जयेश याने चांगली गोलंदाजी केली होती. आपला वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळतोय. पहिल्या षटकात फक्त 9 धावा दिल्या होत्या आणि 2 फलंदाज बाद केले होते. जयेश या चेंडूचा वेग कमी केला होता. थोडासा चेंडू आणखी स्पिन टर्न झाला होता. त्यावर फक्त एकच धाव मिळते आणि एका धावाने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 59. अंतिम षटक, कारण 5 षटकांचा सामना आहे आणि हे अंतिम षटक प्रगतीपथावर आहे. जयेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. सामना करण्यासाठी सज्ज होते सुरेश पारदी. सुरेश पारदी यांनी सुद्धा एक षटकार मारला होता. षटकाराने खातं उघडलं होतं.
वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. याला फक्त शॉर्ट आर्म फुल केलेला आहे. चेंडू मिड विकेटला जातोय. क्षेत्ररक्षण ठिकाणी तैनात आहे. खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. चौकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढते. 63 धावा झालेल्या आहेत. मित्रांनो, उद्या आमचं शेड्यूल जे आहे 2 वाजता सुरू होईल. पहिला सामना जो होईल स्वयंभू पायगाव विरुद्ध अष्टविनायक ठाकूरपाडा. दुसरा सामना 2 वाजता सुरू होईल. दुसरा सामना जो आहे या संघामध्ये विजेता संघाला लढत द्यावी लागणार आहे क्वार्टर फायनलमध्ये विविध आणि दापोडे संघाच्या विरुद्ध. हा ग्रामीण पूर्ण आहे. त्यानंतर सिटी क्रिकेटला सुरुवात होईल. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा. फॉलो थ्रो मध्ये चुकतोय या ठिकाणी गोलंदाज. याला मात्र त्रिफळाची अप्रतिम चेंडू. यॉर्कर चेंडू. दंडा गया सैर करने. पेदों ने नाने खाइयो रे
हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचं आहे आणि त्रिफळाचीची हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचं आहे. हरीश पाटील आलेला आहे, डावखोरा शेरीदार फलंदाज. ऑस्ट्रेलियन ऑलराऊंडर मिचेल जॉन्सनचा अंदाज, गोलंदाजी असो की फलंदाजी. जयेश याला मात्र ड्राईव्ह केले, चिरो मिडाळवरनं डीप मिडाळला. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावांची धावसंख्या होते 67 आणि 68 धावांचं लक्ष्य. सदुसष्ट धावा झाल्यात आणि 68 धावांचं लक्ष्य. मित्रांनो, आजचा जो शेवटचा सामना आहे, या संघातून जो संघ विजय प्राप्त करेल त्या संघाला मयुरेश एंटरप्राइज संघावर लढत द्यायचे. हा सामना बरोबर उद्या 1:30 वाजता होईल. या तिन्ही संघाने याची नोंद घ्यायची आहे. हा सामना उद्या बरोबर 1:30 वाजता होईल, पहिला सामना होईल. तत्पूर्वी मात्र आपण एक आमचे नितेश माळी, नंदेश माळी, सूर्यकांत म्हात्रे, हिमालय डीजे आणि नितेश डीजे आपल्यापर्यंत एक मधुर संगीत घेऊन येत आहेत. का हो साली जी है दुल्हा पसंद बानू. बहत्तर का लक्ष्य छुआ था नवाब स्पोर्ट्स के सामने आखिरी गेंद पर सहारा इंडियंस ने. कल ठीक 1:30 बजे इस मैच की विजेता टीम और
मैंडेटरी पावर प्ले में नवाब के सामने मयूर तरे और दिलीप पाटिल। खेल की शुरुआत करना है महिंद्रा स्पोर्ट्स। So back to cricket now is going to be Suresh Pardi open the bowling attack, facing him Mayur Tare. 68 the target in front of Sahara Indians. Later in the night you are watching the big match. First ball, left arm round wicket. This time short and rising. Mayur try to pull it. There is a little bit extra bounce, beats him outside the off stump. अगदी बरोबर. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला होता आणि थोडासा उजव्या यष्टीच्या बाहेरून निघून गेलेला होता. निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती झालेली. Beautiful ball indeed from Pardi around the off stump. There is a extra pace and extra bounce. Left arm round wicket goes past us. This time try to mighty swung top edge and he's drop a lollipop chance. I think wicket keeper today is not a very good day for Bilal Sheikh. He's an unlucky man, dropping a simple chance because Sujit Naik today not playing. Look at that, Bilal Sheikh under it, hands to it and drop. So Mayur gets a life and very disappoint Pardi. Left arm round wicket goes past us, facing him Mayur Tare. Goes to Mayur, once more try to hooks, but umpire call a wide. He bowl away from the off stump, ball in Dusra Mohalla. स्क्वेअर चेंडू आहे कारण पडल्यानंतर उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर गेलेला आहे आणि पंच इशारा करतायत वाईट बॉल. Pardi, left arm round wicket goes past us. This time pulls it in the air, man under it. And once more dropping in front of Papia Kharik. Finally batsman gets 2 runs. Mayur 2 times survives there. Is 3 without loss. Now Kulbir is running over the ground. This time his over the infield, couple of bounces, cross the extra cover boundary for 4. Between extra cover and cover. What a shot. Slightly helicopter stroke, like a Brian Lara's stroke, dancing stroke, and ball is racing all the way to the cover for 4. अतिशय सुंदर फटका बघितला होता. गॅप मधून मारलेला फटका, कुठल्या प्रकारची संधी नाहीये आणि चेंडू पाहू शकता एक्स्ट्रा कव्हर आणि वाईड ऑफ लॉंगा सीमारेषेच्या मध्ये जातो 4 धावांसाठी चौकार. Pardi. Ball this time Chinaman beats him outside the off stump. Lovely delivery indeed. Back arm from Pardi. His score is 7 for no wicket.
Yes, that's the graphic on your team monitor. Left arm, round wicket. This time around the off stump, hooks the ball in the air. No mistake made by Akash Patil is there in deep, and finally first wicket has gone now. Mayur on his way. नको अशी टनाटन राधे उडू नको टनाटना वाटाण्याचा गोलदान राधे उडू नको अशी टनाटन राधे उडू नको टनाटना वाटाण्याचा गोलदान राधे उडू नको टनाटना ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, एलिवेशन नहीं बना था, नजरें हट गई थी गेंद पे से। आकाश पाटिल जो आउटफील्ड के बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बढ़िया कैच। पहला विकेट गिरता हुआ सारा इंडियंस का स्कोर है 7 रन बिना किसी विकेट के, 7 विदाउट लॉस। Seven for the loss of 1 wicket. कभी कभी ऐसा होता है कि रात ज्यादा गुजर जाए और वो भी कहीं दिन से, और हवाएं भी ठंडी बह रही है, और डीजे मैन ने भी गाना ऐसे लगा दिया था कि 2-4 स्टैंड पे ये सोहेले पड़ेंगे। 7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। गेंदबाजी के लिए अब बुलाया गया है अजीत को। 7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। एक ओवर 7 रन और 1 विकेट। गेंदबाजी के लिए अजीत अपने मार्क पे 3-4 बार घूमते हुए इस मरतबा दूर से खेला था, बल्ले का मोटा सिरा, गेंद गली में गई है, 1 रन। ये गली के चक्कर भी अच्छे नहीं होते, चाहे क्रिकेट की गली हो चाहे महबूब की गली हो, दोनों में पकड़े जाने का डर रहता है। 8 रन 1 विकेट गंवाने के बाद दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। अब ठंडी हवाएं मैदान पे बह रही है और एकाएक मौसम ने करवट ली है, लेकिन मैच करवट लेता है या नहीं ये देखने वाली बात है। हरीश पाटिल को दिखाया जा रहा है, आज उनका बर्थडे था। राइट आर्म ओवर द विकेट, अजीत आगे रखा था, बहुत ही करारा ड्राइव, फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो, सिर्फ 1 रन। आकाश वहां पे थे, द मैन फ्रॉम अंजूर। ये हमारे कैमरामैन को दिखाया जा रहा है, विकास। प्रिंस मूवीज के लिए कैमरे की आंख से विकास करते हुए विकास। ये प्लेस पवेलियन जहां पर कोई खुशी का माहौल नजर नहीं आ रहा है। इस मरतबा आगे रखा था, भेज दिया गया इनको लगन पे, 6 रन। करारा जवाब अनंता का। पंद्रह रन 1 विकेट गंवाने के बाद बहुत खूबसूरत शॉट था अनंता के बल्ले से, बहती हुई हवाओं के साथ
अजीत से कुछ बातें की है वहां पर आकाश पाटिल और हरीश पाटिल ने। सचिन गायकवाड़ इस वक्त पॉइंट पे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, साइड आर्म गेंद, फिर से ट्राई डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं, 4 रन। काय माझी बायको सुटाना, काय उपाय करू मी काय, माझी बायको सुटाना, लग रहा है कि अब कमर कस ली है अनंता ने। 19 रन 1 विकेट गंवाने के बाद, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। ये देखिए डाउन द ग्राउंड खेला था, तीर की मानिंद बल्ले से शॉट निकलता हुआ, 4 रन। इस मरतबा स्ट्रोक किया, एक और सिक्सर। अजीत को इस वक्त अजीत के सामने मोर्चा खोला है और 3 गेंदों में 16 रन बना लिए वहां पर अनंता ने। ये देखिए मिडल कॉन्फ्रेंस होती हुई, क्योंकि अभी तक 11 गेंदों में 25 रन बने हैं। ये देखिए आप खुशी का माहौल वहां पर प्लेस पवेलियन में। थोड़ा सा चिंतित अब नजर आ रहे हैं टीम के कप्तान पपिया खारिक, कुछ समझाने आए हैं अपने गेंदबाज अजीत को। 25 रन हो चुके हैं और यहां से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा ऊपरी सीरा और अजीत ने आखिरकार बदला ले लिया, आउट कर दिया वहां पर अनंता को। सॉफ्ट डिसमिसल। दो ओवर की समाप्ति 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए सुरेश पारदी को कंटिन्यू रखा गया है, मरता क्या ना करता, क्योंकि 3 ओवर में जीतने के लिए अभी भी तैतालीस रन चाहिए। पारदी, ये देखिए ये तो निकल गए दूसरे मोहल्ले में वाइट। कहीं ना कहीं हाथों को मट्टी लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ड्यू फैक्टर हल्का सा काम कर रहा है। 42 रन चाहिए 3 ओवर में। दिलीप पाटिल जब तक रहेंगे, जब तक आशाएं जीवित रहेंगी सहारा इंडियंस की। सुरेश पारदी
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। बढ़िया गेंद, काफी मोमेंट था टिप्पा खाने के बाद, टिप्पा खाने के बाद लहराती बल खाती विकेट कीपर के पास। 26 रन हुए, 68 रन चाहिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए सारा इंडियंस को। क्वार्टर फाइनल में मयूरेश स्पोर्ट पहुंच चुकी है। ये विशाल पाटिल जो इस वक्त लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर हैं। धीमी गेंद, अच्छा गति परिवर्तन, गेंद को मिड विकेट पे ऑफिस टोस खेला, 1 रन बना। नए बैट्समैन हरीश ठाकरे ने 1 रन से स्कोर 27 रनों पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी मुकाबले में जान बाकी है, मुकाबले में काफी जान बाकी है। इस मरतबा पुल, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, गेंद लुढ़क कर पहुंची, झपटे, बहुत बढ़िया फील्डिंग आकाश की, चीते की तरह झपटे थे डीप से, सिर्फ 1 रन बनता हुआ। 28 पे पहुंचा स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर सहारा इंडियंस का। ये हरीश पाटिल को दिखाया जा रहा है जो इस वक्त लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्ड कर रहे हैं। इस मरतबा बढ़िया गेंद, स्वीप करना चाहते थे वहां पे हरीश ठाकरे, कामयाब नहीं हुए। बहुत अच्छा गति परिवर्तन कर रहे हैं और इस पूरे सुबह से हम देखते हैं तो अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पर दोपहर से सुरेश पारदी ने। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि अजीत महंगे साबित हुए थे लेकिन विकेट आखिरकार अजीत ने हासिल ही कर लिया था अनंता का। सुरेश पारदी इस मरतबा पुल किया गेंद को हवा में, लेकिन कैच छूटा वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लपक नहीं पाए। तेज स्ट्रोक निकला था बल्ले से, 1 रन से स्कोर 29 पे पहुंचा। अब इक्वेशन थोड़ा मुश्किल होता हुआ क्योंकि गेंदें सिर्फ बची है 13 और रन काफी चाहिए वहां पर, 39 रन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रन बन नहीं सकते। पारदी फुल टॉस गेंद फिर से बल्ले पे नहीं आई, तो कुल मिलाकर ओवर समाप्त होते हुए 3, स्कोर है 30, 2 ओवर में चाहिए 38। डू और डाई, चुनौती बहुत भारी, लेकिन कमेंट्री की हर चुनौती को स्वीकार किया है गवली सर ने और आज भी कर रहे हैं। आपके साथ आखिर तक रहेंगे डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद सिद्दीक भावे। 38 धावांची आवश्यकता आहे, 12 चेंडू आणि 38 धावा। आव्हान कठीण आहे, अशक्य मात्र नक्कीच नाहीये। क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्यायचंय। बारा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 38 धावांची आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए राज बावलिया को बुलाया गया है। राज येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी। यस, लेट देवीदास कप को जब महिंद्रा ने जीता था तो गैसुद्दीन शेख और राज बावलिया की गेंदबाजी बहुत इफेक्टिव रही थी। आज गैसुद्दीन शेख भी नहीं है और सुजीत नाइक भी टीम में नहीं है। हे आपण पाहू शकता, एरियल बलून। राज येतोय,
12 चेंडू आणि 38 धावांची आवश्यकता आहे. संघाचा कर्णधार दिलीप पाटील अजूनही क्रीजवर आहे. नॉन स्ट्राइक एंडला हरेश. यावेळी मात्र एक चांगला चेंडू निधावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती होते. उद्या जो पहिला सामना होईल मयुरेश एंटरप्राइजेस आणि या संघामधून जो संघ विजय प्राप्त करेल त्या संघाला बरोबर 1:30 वाजता या ठिकाणी हजर राहायचं आहे. मयुरेश एंटरप्राइजेस आणि या दोन संघामध्ये विजेता संघ. यावर मात्र पोल आणि पॉवरफुल टॉवरिंग 6. पीछे हटे थे वहां पर बहुत खूबसूरत पुल स्ट्रोक. दिलीप पाटिल इसी तरह टिपिकल शॉट खेलते हैं. ये देखिए पूरी ताकत को पिछले पांव पे ले लिया और गेंद को पुल कर दिया उन्होंने मिड विकेट पर. 6 रन. षटकाराने धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या झाली 36. 10 चेंडू आणि 32 धावांची आवश्यकता. अजूनही सामना संपलेला नाहीये कारण दिलीप पाटील खेळपट्टीवर आहे. डेंजरमॅन संघाचा कर्णधार. आणि दिलीप पाटील असा एक फलंदाज आहे कुठल्या क्षणी सामन्याचं चित्र बदलू शकतो. राज यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे. पूर्णपणे बीट केलेला आहे. पूर्णपणे चकित केलेला आहे. बहुत अच्छी वापसी आगे रखा था और पिछले पांव पे जाके ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी. क्वार्टर फाइनल में पॉइनियर वीरेन, सेमीफाइनल में धनेश, क्वार्टर फाइनल में मयूरेश पहुंच चुके हैं सिटी पूल से. राज याला मात्र ड्राईव्ह केल्याची मिड ऑफ पूर्ण डीप मिड ऑफला येतोय. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे. विशाल पाटील त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. आज बिलालचा दिवस दिसत नाहीये. नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था कि पूरे सीजन में देखिए 5 से 6 मरतबा बिलाल का एक नामुमकिन कैच खिलाड़ी ने पकड़ा है इस सीजन में. लक फैक्टर का जहां तक ताल्लुक है मैगी 11 और बिलाल शेख दोनों के साथ किस्मत नहीं रही. राज हा चेंडू मात्र स्वेर चेंडू आहे. उजव्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच दिनेश नाईक यांचा इशारा वाईट बॉल. एक अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 38. 3 टीमें गिरामीन से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. एकवीराम अनकोली, गावदेवी अंजूर और गावदेवी बिनार. राज यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे. निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती झालेली आहे. यस, बहुत खूबसूरत गेंद थी. कॉरिडोर अनसर्टिनिटी से पहुंची थी विकेट कीपर के पास. बिल्कुल विकेटों के ऊपर से चली गई थी. हालांकि अधिक शॉर्ट गेंद नहीं थी जिस तरह समझ बैठे थे वहां पर बैट्समैन हरीश ठाकरे. यावेळेला पुन्हा एकदा निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झालेली आहे. आणि आता मात्र नक्कीच आव्हान कठीण होणार आहे कारण 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी सहा चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता. म्हणजे प्रत्येक चेंडूला सीमारेषेचा रस्ता दाखवावा लागेल.
याला मात्र लॉफ्ट केलेला आहे चेंडूला. सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. बात तो जरूर है कि दिलीप पाटिल इस सीजन में जितने फॉर्म में चल रहे हैं सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट, उन्होंने इस सिक्सर को लगा के ये बता दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आता मात्र जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका खेळावा लागेल. खरं तर दिलीप पटेलला स्ट्राईक फार कमी मिळालेली आहे. हरेश पुन्हा एकदा पोल पॉवरफुल वॉट अ शॉट टॉवरिंग 6. क्या हो रहा है? आज हरीश पाटिल का जन्मदिन और स्वागत, जन्मदिन को मना रहे हैं इस वक्त दिलीप पाटिल. 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगा चुके हैं वो, और अब 4 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 18. ये कारनामा एमएलए ट्रॉफी 2 में किया था मराठा पंजाब के सामने. जावेद ने जब यशपाल माली को 5 सिक्सर लगा के मुकाबले को जीत लिया था. मात्र जोपर्यंत खेळपट्टीवर दिलीप पाटील आहे तोपर्यंत खत्रीची घंटी निश्चितपणे महिंद्रा स्पोर्ट्स संघासाठी वाजत राहणार आहे. कारण दिलीप पाटील यंदाच्या हंगामाचा विचार केला तर यंदाच्या हंगामामध्ये सिटी पूल मधील 2 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता असताना 2 गगनचुंबी षटकार घेऊन आपल्या संघाला विजय संपादन करून देण्याचा रेकॉर्ड या फलंदाजाच्या यंदाच्या हंगामामध्ये केलेला आहे. सिद्दीक बाबा आपल्याला माहित असेल कोट 11चा नितीन याने बालाई चषक मध्ये हा कारनामा केला होता. यस, हरीश पाटिल इस वक्त थोड़ा सा दबाव में आते हुए, दिलीप पाटिल गजब के फॉर्म में चल रहे हैं. याला पुन्हा ड्राईव्ह केलेला आहे चेंडू जातोय. आणि याचबरोबर फलंदाज धावबाद होतोय. तुझ्या घरात आलोया लई पडून बांधावरून पट्टी मारून आलोया आगडीच्या जोरात टेकलो वरात दारात आलोया. चेसिंग कंपलसरी है, इस बात को सुन ले. चेसिंग कंपलसरी है. याला त्या पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. आता मध्ये 3 चेंडू आणि 16 धावा. दोन्ही बॉलचे प्रेक्षक थोडेसे टेन्स मध्ये आहेत. यापूर्वीचा आपण बघितलं जवळपास छातीवर हात ठेवला होता प्रेक्षकाने. 3 चेंडू आणि 16 धावा. याला अपील केलं जात आहे आणि याच बरोबर दिलीप पाटील याची खेळी पायचीच्या रूपाने संपुष्टात. आखिरकार बर्थडे का गिफ्ट दिलाते हुए दिलीप पाटिल को उन्होंने आखिरकार आउट किया. बहुत बढ़िया गेंद थी, आगे रखा था, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे दिलीप पाटिल. आता मात्र एक आहे महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला पराभूत जर करण्याची भूमिका बजावू शकतो तर फक्त गोलंदाजच. कारण 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता आहे. 2 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता आहे. हरीश पाटील याला मात्र एक चांगला चेंडू आणि निधावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती समीर तांगडी आलेला आहे.
शेवटचा चेंडू आणि तुला कोण औपचारिकता पूर्ण करायची आहे. याला फुलटा चेंडू मात्र फायदा उचलता आणि याचबरोबर महिंद्रा स्पोर्ट्स संघ विजय प्राप्त करते. अभिनंदन महिंद्रा स्पोर्ट्स. और क्वार्टर फाइनल में पहुंचती हुई कांग्रेचुलेशन आमदार रुपेश मात्रे, लॉयन ऑफ भिवंडी, संजय मात्रे, पपिया खारिक एंड बिलाल शेख, हारे, सचिन गायकवाड, विशाल एंड आकाश, ऑल टीम, सुरेश पारदी. आइए आखिर के मैन ऑफ द मैच की तरफ हम चल रहे हैं. हम आपको लिए चलते हैं मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मॅन ऑफ द मॅच आकाश. आकाश पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच. ओवर टू डॉक्टर गवली सर. आकाश यांनी 26 धावांची तुफानी खेळी केली होती सलामीला येऊन आणि आपल्या विजयामध्ये आपल्या संघाला क्वार्टर फायनल मध्ये उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी सिंहाचा वाटा उचलला होता. सो मॅन ऑफ द मॅच आकाश. आकाश इज द मॅन ऑफ द मॅच. सर्वप्रथम ओंकार युवा संस्थेचे आमचे निवृत्तीजी पाटील यांना विनंती करणार आहे आपण एक गिफ्ट हॅम्पर जे मॉन्जिनिस केक आहे ते आपण प्रदान करायचं आकाशास. आपण पाहू शकता निवृत्तीजी पाटील जे ओंकार युवा सेवा सामाजिक संस्था यांचे शुभ हस्ते. त्यानंतर हरीजी माळी जे सचिव आहेत ओंकार युवा सेवा सामाजिक संस्था त्यांच्याकडे एक गिफ्ट हॅम्पर. त्यानंतर रमाकांतची घरं जे खजिनदार आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते एक गिफ्ट हॅम्पर. त्यांचे दिना पाटील साहेब यांचे बंधू देवानंदजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आकर्षक ट्रॉफी आकाशास मॅन ऑफ द मॅच म्हणून देतात देवानंदजी पाटील आपल्या शुभ हस्ते. सो वेल प्लेड आकाश.